Hello everyone, welcome in this channel. And today in this video we would learn the detailed concept of hypothesis testing. And today also we would learn the different type of statistic test and that is used to test the hypothesis like G-test, T-test, chi-square, etc. And today also we would discuss about what is the different among various type of t-test like one sample t-test, two sample t-test, dependent t-test, independent t-test, and pair sample t-test. So before getting the knowledge about hypothesis testing, we shall focus on the background and root of hypothesis testing. So actually, hypothesis testing is a part of inferential statistics. अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, इसके लिए हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्टेज एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक बेसिकली अप्लाइड. So we can see here basically statistic is the science of collecting, classifying, presenting and interpreting data. जो स्टेटिस्टिक होता है उसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं. The statistic is two types. First is descriptive statistic, in which the data speaks for itself, and another type of statistic is inferential statistic. It is called the technique of interpreting of data. So there is in this diagram presenting a different type of statistic. First statistic is divided into part. First is theoretical statistic, and second part is applied statistic. And applied statistic also bifurcated into two categories. First is descriptive statistic and inferential statistic. And descriptive statistic is also bifurcated into two categories. First is measure of central tendency, in which we cover the mean, median and mode. And another one is measure of variability, that's cover the range, standard deviation, mean deviation, variance, dispersion, etc. type of statistic we learn under the measure of variability under descriptive statistic. And today in this video we have to focus on inferential statistic because hypothesis testing is a part of inferential statistic. Here is other diagram also has been presented. As you can see here, it is the statistic and there is a descriptive and there is inferential. Under the descriptive, we presenting, organizing and summarizing the data. On the other hand, under the inferential statistic, we drawing conclusions about the population based and data observed in a sample. And here also you can see descriptive statistic, under which we organize, summarize, simplify and describe the present data. And under the inferential, we generalized from sample to population and hypothesis test and make the prediction. So type of inferential statistic, we can say one sample t-test, hypothesis, confidence interval, contingency table and chi-square statistic. T-test or ANOVA, Pearson correlation, bivariate regression, multivariate and regression, that's all the part of inferential statistic. So hypothesis testing is a part of inferential statistics. Already we have learned. So there are some steps to check the hypothesis. हमें hypothesis को check करने के लिए कुछ steps को follow करना है. That is mentioned here. First step is to check the normality of distribution. हमें जो हमारा डेटा है सैंपल उसकी नॉर्मलिटी चेक करनी है कि क्या जो हमारा डेटा लिया गया है उसका जो सैंपल था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था या नहीं. अब नॉर्मलिटी चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं, वाया स्कीमेस, कर्टोसिस, हिस्टोग्राम, पी प्लॉट, क्यू प्लॉट. ठीक है, इन सब के थ्रू हम लोग नॉर्मलिटी चेक करते हैं. एंड कुछ टेस्ट भी अप्लाई करते हैं, सपोज दैट केस टेस्ट एंड विल्क-शपीरो टेस्ट. दिस टाइप ऑफ टेस्ट यूज टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा. इसकी डिटेल में सेपरेट वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा. आफ्टर चेकिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, second step is check the to draw the direction of the test. किस डायरेक्शन में चेक करना है. वन टेल टेस्ट में
चेक करना है या टू टेल टेस्ट में चेक करना है। बेसिकली ये आप जब हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं वहीं ये क्लियर हो जाता है आपकी टेस्ट किस दिशा में जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस है तो टू टेल टेस्ट में जाता है, वन टेल टेस्ट में बेसिकली डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जाता है। तो ये पहले हम लोग क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है इसमें हम लोग चेक करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, दैट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लेवल। अब अल्फा लेवल बेसिकली हम लोग चेक करते हैं किस, पहले ही डिसाइड करते हैं हमें किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अपने डेटा को या हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, जिसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। अभी हम लोग पॉइंट 10 पे देखते हैं, 0.05 पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, 0.01 पर भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, एंड 0.001 पर भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली इन सोशल साइंस हम लोग हाइपोथेसिस रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं ओनली 0.05 एंड 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। एंड मेडिकल रिसर्चर्स बेसिकली हाइपोथेसिस अपना रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं ऑन द लेवल ऑफ 0.001 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी जो रिसर्चेस होती हैं काफ़ी रिस्क होती हैं। एंड एग्रीकल्चर में बेसिकली रिसर्चेस जो होती हैं वो 0.10 पे ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो आफ्टर क्लियरिंग द सिग्निफिकेंस लेवल, उसके बाद में हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस को रिजेक्ट टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें बेसिकली जी टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। अब बेसिकली हाइपोथेसिस है क्या, द डिटेल कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हमने एक अलग वीडियो में इसे मेंशन किया है, डिटेल में कवर किया है, वहाँ जाके आप उसे डिटेल समझ सकते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस इज ए अजम्पशन मीन या टेस्ट ऑफ मीन्स, जो हम मीन्स जो होते हैं जो दो ग्रुप के उसको चेक करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट है क्या। तो जी टेस्ट और the t-test, basically it assess whether the means of two group are statistically different from to each other, यानी जो दो ग्रुप हमने लिए हैं या दो सैंपल साइज होते हैं वो दोनों कितना एक दूसरे से डिफर करते हैं या फिर में रियल डिफरेंस है या नहीं है, इन दोनों के मीन की डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग जी टेस्ट, टी टेस्ट यूज करते हैं। बेसिकली जी टेस्ट एंड टी टेस्ट लगभग सेम है, एंड जी टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, SPSS यूज करोगे, MS Excel यूज करोगे, तो मोस्टली सब में टी टेस्ट ही मिलते हैं, क्योंकि जी टेस्ट इज ए एक्सटेंशन पार्ट ऑफ टी टेस्ट। बट फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है, जैसे हम लोग देखते हैं। जी टेस्ट बेसिकली यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज मोर देन 30, जब आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होता है वहाँ हम लोग जी टेस्ट यूज़ करते हैं, और जब भी आपका सैंपल साइज लेस देन 30 होता है वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं टी टेस्ट। एंड जी टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन, जो भी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड वेरिएशन होता है, ठीक है, उसे जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी मालूम रहता है, वहाँ जी टेस्ट यूज़ करते हैं। और जहाँ पॉपुलेशन की वेरिएंस में नहीं पता होता है, ठीक है, we are quite ignorant about the population variance, in that condition we apply the t-test. So basically g-test is applicable for large sample test, whereas t-test applicable in the small sample test. The concept of g-test was given by Fisher and the concept of t-test was given by Gaussian. तो बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस है इन दोनों में दो चीज़ों पे होता है, एक लार्ज सैंपल साइज वहाँ हम लोग जी टेस्ट यूज़ करते हैं, और पॉपुलेशन की वेरिएंस अगर हमें ऑलरेडी मालूम है वहाँ जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर ये कंडीशंस नहीं है, दोनों सैंपल साइज भी कम है, वेरिएंस भी नहीं है मालूम है पॉपुलेशन का,
तो वहाँ हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का डिफरेंस पढ़े हैं यहाँ डायग्राम के रूप में प्रेजेंट किया गया है। सपोज दैट डू यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन RSD? इफ यू डोंट नो देन यू वुड यूज टी टेस्ट। आप पॉपुलेशन के बारे में वेरिएंस नहीं मालूम है, यू आर क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, देन वेयर यू हैव टू अप्लाई टी टेस्ट। एंड इफ यस आपको वेरिएंस मालूम है ऑलरेडी, तो हियर दो कंडीशंस फिर आते हैं। इज द सैंपल साइज इज अबव देन 30, वेरिएंस मालूम है प्लस 30 प्लस है, अगर यस है तो यहाँ जी टेस्ट यूज करेंगे, और यदि नो है मीन्स 30 से कम पॉपुलेशन है तो उस कंडीशन में भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ फार्मूला ऑल्सो मेंशन है कि हम लोग जब हैंड कैलकुलेशन करते हैं तो जी टेस्ट का फार्मूला जो होता है जेड इज इक्वल टू सिग्मा बार माइनस म्यू अपान एच डी अपॉन अंडर रूट एन, where is t formula is t is equal to sample first minus sample second upon under root hd of first sample square upon n1 plus hd of second sample square upon n2. This formula used to calculate the t and this formula used to calculate the g square, the g test. अब देखते हैं टी टेस्ट है क्या। टी टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट। The t-test is a statistical test that is used to compare the means of two group. इसमें जो दो ग्रुप रहते हैं उनके मीन्स का कंपेयर करते हैं टी टेस्ट में। एंड इन अदर वर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट इन स्टैटिस्टिक इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट the mean of a small sample drawn from normally distributed population when the population standard deviation is unknown. सेम चीज़ जो भी हम लोग पहले स्लाइड में पढ़े थे कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो एंड सैंपल साइज भी कम हो उस कंडीशन में हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस आपका जो डेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो टी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के कई कंडीशंस होते हैं। सपोज दैट आपका जो डेटा का सैंपल का मेजरमेंट हुआ है किस लेवल पे हुआ है, अगर इंटरवल आर रेशियो लेवल पे हुआ है तो दिट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट। एंड अगर आपका नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल पे हुआ है तो दिस इज द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक। उस कंडीशन में हम हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए काई स्क्वायर एंड अदर टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली इन 1908 विलियम सिलिगोसे was an Englishman publishing under the pseudonym student developed the t-test and t-distribution. So Gose worked at the Guinness Brewery in Dublin. Dublin is the capital of Ireland, where he found that existing statistical techniques using large samples were not useful for small sample sizes that he encountered in his work. And in earlier t-test was called student test, but later on it's shortened by t-test. अब जो है स्टूडेंट टी टेस्ट को टी टेस्ट ही मोस्टली कहा जाता है। सो इट वाज द बेसिकली हिस्ट्री ऑफ टी टेस्ट। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ टी टेस्ट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। फर्स्ट इज वन सैंपल टी टेस्ट, another is two sample t-test. Two sample is also called independent t-test, and third is paired or matched or repeated or dependent sample t-test. इसके कई सारे नाम हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर सैंपल टी टेस्ट, मैच्ड मेजर सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ये सब एक ही हैं जो बेसिकली यूज होते हैं प्री एंड पोस्ट डिजाइन में। तो बेसिकली जो फर्स्ट वन इज वन सैंपल टी टेस्ट एग्जामिन वेदर द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉन और हाइपोथेसिस
वैल्यू। कभी कभी होता क्या है, एक सैंपल टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट 60% ऑफ एम्प्लॉय आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन इन 2020। हमने मान लिया कि 2020 में किसी पर्टिकुलर कंपनी के 60% एम्प्लॉय सफरिंग कर रहे हैं स्ट्रेस से। तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, क्योंकि एक ही सैंपल है तो इसे हम कंपेयर करते हैं अपने पास्ट रिकॉर्ड डेटा से या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस डेटा से, या इसी कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ होगा 19 में 18 में, वहाँ स्ट्रेस का लेवल क्या था, 15 था, 17 था, 16 था, जो भी रहा होगा, जो भी वैल्यू रही होगी, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं दिस वैल्यू इज मोर, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो बेसिकली वन सिंपल टी टेस्ट क्या करते हैं, इट कंपेयर विद ए हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू और हाइपोथेसाइज्ड मीन। ठीक है, इसमें एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू रहती है हमारी, ठीक है, या उसकी मीन रहती है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। और वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या होती है, हमारी जो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेस पे हम यहाँ वन सैंपल टी टेस्ट से कंपेयर करते हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजी में कम ही यूज होता है, हालांकि इसमें परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करके हम लोग हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन इज टू सैंपल टी टेस्ट, इट इज यूज्ड ऑन ए ब्रॉड लेवल एंड two sample t-test is also known as independent measure t-test and it is used to determine if two population means are equal। इसमें देखा जाता है कि जो हमारे दो ग्रुप हैं उनके मीन्स इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं, इसकी जांच हम लोग करते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल अगर देखें तो सपोज दैट यू हैव टू वर्क ग्रुप ऑफ वुमेन, फर्स्ट इज वर्किंग वुमेन एंड सेकेंड इज नॉन वर्किंग वुमेन। तो इन दोनों वुमेन्स का स्ट्रेस लेवल चेक करनी है, हु इज मोर स्ट्रेसफुल, ठीक है, हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन, जिनका लेवल ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में जो वर्किंग वुमेन है, नॉन वर्किंग वुमेन है, इन दोनों के बीच के मीन का जो हम डिफरेंस देखेंगे, दैट्स वुड कम अंडर दी टू सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर हम लोग इनके जो दो ग्रुप वुमेन्स हैं इनके बीच में डिफरेंस जानने के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या टू सैंपल टी टेस्ट का यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट इसलिए कहा गया क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट वे में। वर्किंग वुमेन का भी अलग सेपरेटली मेजर किया गया है स्ट्रेस लेवल एंड नॉन वर्किंग वुमेन का अलग सेपरेटली मेजर किया गया स्ट्रेस लेवल। दोनों का जो वैल्यू है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट इन। थर्ड टाइप ऑफ टी टेस्ट इज पेयर्ड या मैच्ड repeated dependent sample t-test. It is basically used in pre and post design. And in paired sample t-test, each subject is measured twice, resulting in paired observation. इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास केसेस होते हैं वो दो बार मेजर होता है। अब फॉर एग्जांपल सपोज दैट आप मेमोरी लेवल मेजर करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप पहले उसका मेमोरी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट मेजर करोगे, उसके बाद में उसे इंटरवेंशन दोगे, 6 मंथ 4 मंथ जैसा भी दोगे। इंटरवेंशन आप दे सकते हो एज यानी ट्रीटमेंट, या योगा दे सकते हो, मेडिटेशन दे सकते हो, कोई भी इंटरवेंशन की आप उसे दे सकते हो। आपको ये देखना है कि पहले इनकी मेमोरी लेवल कैसी थी, हमने इंटरवेंशन दिया, इंटरवेंशन देने के बाद फिर सपोज दैट 6 मंथ का इंटरवेंशन दिया या 4 मंथ का दिया या 1 ईयर के दे, जब भी दिया, इसके बाद आप फिर एक पोस्ट मेजर करते हो। पोस्ट मेजर मीन्स फिर मेमोरी लेवल का आप मेजर करते हो इंटरवेंशन देने के बाद, फिर आप कंपेयर करते हो प्री टेस्ट स्कोर एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर का, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से इसे कहा जाता है डिपेंडेंट मेजर टी टेस्ट, यानी वन स्कोर डिपेंड ऑन दी अदर्स स्कोर। एक जो प्री टेस्ट का स्कोर है एंड पोस्ट टेस्ट का स्कोर है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, इन्हीं दोनों में बेसिकली कंपेयर होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन प्री एंड पोस्ट डिजाइन। देयर इज मेंशन
कुछ फार्मूला है जिन्हें हम बाय हैंड कैलकुलेशन करना चाहें, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट, तो यहाँ कुछ फार्मूला गिवन है। सपोज दैट वन सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला है टी इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, जिसका डी एफ निकलता है, डी एफ इज एन माइनस वन करके। टू सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला है टी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू अपॉन एच डी ऑफ फर्स्ट सैंपल इंटू सेकेंड सैंपल इंटू अंडर रूट वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू करके टू सैंपल टी टेस्ट का डी एफ निकालते हैं। एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट में भी सेम डी एफ निकालते हैं जैसा कि वन सैंपल टी टेस्ट में निकालते हैं, एन माइनस वन करके। तो दिस इज द बेसिकली टाइप ऑफ टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट। इससे ज़्यादा टी टेस्ट की कैटेगरी कहीं मिलती नहीं है बेसिकली। So that's all. So in our next video we would learn how to calculate the t-test in Excel and SPSS, and how we accept and not accept our hypothesis, किस बेस पे हम लोग hypothesis को accept या reject करते हैं, इन सबको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So thank you for watching detail.